Hello students, this is the last lecture we are going to discuss before your summer break. So, meiosis 1. In earlier lecture we studied about prophase 1 and substages of prophase 1 like leptotin, zygotin, pachytene, diplotin, diakinesis. Here in leptotin we have seen that chromosome compaction that is continuous है. Then zygotin में जो प्रोसेस होता है one is synapsis, that means pairing of homologous chromosomes, then formation of synaptonemol complex, that means a protein complex form around the, we can say, this paired homologous chromosome, then bivalent or tetrad. Bivalent, this synapsis that means result into the bivalent or tetrad. Bivalent mean 2 chromosomes, tetrad mean 4 chromatid of 2 chromosomes. Then in pachytene, this is the most important, we can say, stage of this prophase 1, that means we want the thing that happen here only. So pachytene, यहाँ पर क्या होता है, recombination nodules बनता है, that means a place where crossing has to take place. Then recombinase is an enzyme. With the help of enzyme recombinase there would be crossing over, and crossing over mean exchange of segment of genetic material on chromosome, on homologous chromosome. Then finally it gives the recombination, or we can say new combination of chromosomes. Then in diplotin there is a dissolution of synaptonemal complex. This SC means synaptonemal complex, and formation of chiasmata, and this chiasmata is the X-shaped structure, यानी कि वो ही जगह बसती है जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुई है, बाकी वो सेपरेट हो जाते हैं. देन इन डायगोनेसिस देयर इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata, देन वो सारे अलग हो जाते हैं. देन नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज 1. ओके, नाउ अब ध्यान से देखो, वापिस चलो माइटोसिस पर. ओके, now I am making, there are 4 cells, that means now for example 1 cell is equal to 4 chromosomes, यानी कि 2n is equal to क्या होगा, 4 होगा. तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 2n is equal to 2 pairs of chromosomes. ऐसी सेल है. ओके, नाउ दिस इज द सेल एंड देयर आर 4 chromosomes. Okay, here we can say this is the chromosome number 1, this is chromosome number 1 dash, then 2 and 2 dash. 1 dash mean they are homologous. This cell is, we can say, before DNA replication. After S phase ये कैसी हो जाएगी, like this, ये हो जाएगी ऐसे. After S phase this would like this. तो there are 4 number of chromosome, यहां भी 4 number of chromosome है. तो मेटाफेज पे हमने क्या देखा था कि all they align in a plane, and that is known as metaphase plate. Is clear or not? यहां से इसकी क्या थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच थे. ओके, नाउ सी दिस इज सेल बिफोर एस, दिस इज आफ्टर एस फेज, and this is at a metaphase. Okay, now there is a separation of chromatids. यहां पर क्या होगा, separation of chromatids. तो 2 सेल्स कैसी बन जाएगी, ऐसी. like this. Now count here 1 2 3 4.
1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि जैसी ये सेल थी वैसी ही बिल्कुल ये सेल बनी है। इज क्लियर? सो दिस इज द मेटाफेज स्टेज एंड हियर दिस इज द मेटाफेज प्लेट। और यहाँ पर हुआ है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स का। किसका सेपरेशन हुआ है? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स का। तो जो नंबर ऑफ chromosome that would remain same in daughter cell. But if we talk about meiosis and metaphase 1, ये 4 क्रोमोसोम है। अब वहां पर क्या होगा? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2 मेटाफेज प्लेट। वहां पर मेटाफेज प्लेट बनेगी 2 ऐसे, like this. So this is the one metaphase plate, this is the second metaphase plate. तो that means ये ऐसे इससे जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पर this is the metaphase of mitosis, this is the metaphase of meiosis 1. अब यहाँ पर क्या है? there is a formation of 2 metaphase plate. Okay, now this is chromosome number 1, then this is 1 dash, this is 2 and this is 2 dash. Okay, अब देखो in this case there is a separation of chromatids, but यहां पर chromatids की जगह सेपरेशन होगा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कब? एनाफेज में। ओके, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो टुगेदर रहेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स अटैच्ड टुगेदर। क्लियर है? तो जब ये सेल एनाफेज में जाएगी तो ये सेल दिखाई देगी हमें ऐसी। अब देखो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा ऐसे इन टीलोफेज में, मतलब बिफोर टीलोफेज जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड आ जाएगी। नाउ सी, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वन डॉटर सेल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अनदर डॉटर सेल। नाउ काउंट हियर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम नंबर 1 and 2, 1 dash and 2 dash। ये कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है। दिस मूवमेंट इज रैंडम, यानी कि एक सेल में 1 2 आ सकता है, दूसरी सेल में 1 dash 2 dash आ सकता है। ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 dash 2 और वी कैन से 1 dash 1 2 dash। ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दिस इज रैंडम। बट सेट में से एक क्रोमोसोम आना जरूरी है एक तरफ, यानी कि पेयर में से एक इस तरफ एक इस तरफ। ओके, नाउ सी हियर, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 1 2, इसमें 1 2, यहाँ पर कितने थे 1 2 3 4। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस टू हाफ हो गए। बात समझ में आई? दैट मीन्स हियर इन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज ऑफ मेयोसिस 1, यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी। इज क्लियर? अब देखो इसको समझ लिया सब पूरे को। Now, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 1 है ये, 1 है ये, 1 है ये। तो मेटाफेज पे क्या है? 2 मेटाफेज प्लेट है। एनाफेज पे ये सेपरेट हो गया like this, and we know that telophase is opposite to prophase, लेकिन वो सारे काम नहीं होंगे ये लेप्टोप्टेन जाइगोटिन वाले बाकी चीजें। तो ये हो जाएगा ऐसा,
दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, 1 2 3 4, बट इन न्यू डॉटर न्यूक्लियस 1 2, न्यू डॉटर न्यूक्लियस 1 2, यानी कि ये जो सेल 2n थी यहाँ पर ये न्यूक्लियई n हो गया, ये न्यूक्लियई भी क्या हो गया, n हो गया, यानी कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस जो दो सेल बनी वो बनी ऐसी। लाइक दिस। अब बताओ, दिस वाज द ओरिजिनल सेल 1 2 3 4 क्रोमोसोम, दिस इज द न्यू सेल 1 2 क्रोमोसोम 1 2 क्रोमोसोम, तो ये सेल क्या बन गई n, ये सेल भी क्या बन गई n। तो यहां पर मेटाफेज पे क्या हुआ, 2 मेटाफेज प्लेट बनी, and then in anaphase there is separation of homologous chromosomes, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ होमोलोगस का, वहां पर क्या हुआ था इसमें क्रोमेटिड्स का। देखो यहां पर तो ये आपस में अलग हुए थे और यहां पर ये पूरा पेयर अलग हो रहा है, तो ये डिफरेंस था मेटाफेज में किसका, माइटोसिस एंड मियोसिस 1 का। नाउ सी हियर द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, बट यहां पर क्या है, कंटेंट है वो क्या है, डबल है, कंटेंट क्या है, डबल है। नाउ दिस कंटेंट फर्दर डिवाइड इनटू वी कैन से 2 न्यू सेल्स। अब ये जो मियोसिस 2 है, यानी कि ये सेल है, दिस सेल, नाउ दिस सेल मियोसिस 1 की एक सेल थी ये ऐसी, ओके। नाउ ये किस पे जाएगी, वो सेम प्रोफेज, देन ये जाएगी मेटाफेज पे, तो मेटाफेज पे ये सेल बनेगी ऐसी, ओके। एनाफेज पे वापिस कैसे हो जाएगी ये ऐसी, एंटीलोफेज पे लाइक दिस। अब देखो ये वापिस वैसा हुआ नहीं हुआ, दैट मीन दिस इज द मेटाफेज 2 सेम एज माइटोसिस मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बट फर्क क्या है कि देयर इज ए हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इज क्लियर और नॉट? तो सिर्फ इसमें ये ही डिफरेंस है, तो यानी कि 2 सेल यहां पर बनी और 2 सेल फिर आगे ये बन जाएगी, तो फॉर्मेशन ऑफ टोटल, यानी कि इससे 2 बनेगी, इससे 2 बनेगी, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टोटल 4 सेल्स, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं। नाउ सी, इनिशियली सब में 4 क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम इन 2 पेयर्स, सो मेटाफेज अगर मैं 1 2 नहीं लिख रहा हूं तो दैट मीन दिस मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज इज ऑफ माइटोसिस, अगर मैं 1 2 लिख रहा हूं दैट मीन दैट इज ऑफ मियोसिस। सो मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर 4, पेयर है 2, ओके। तो मेटाफेज में ये होगा ऐसा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 1 मेटाफेज प्लेट 1 2 3 4। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो इस मेटाफेज पर यहाँ पर होंगे 46 क्रोमोसोम। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन सेल्स तो यहाँ पर होंगे 46 इंस्टेड ऑफ 4, ओके। तो मेटाफेज में होगा, देन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, यानी कि जैसा इससे पहले था ऐसे वैसी ही नई सेल बन गई 2। इज क्लियर और नॉट? बिकॉज इस क्रोमोसोम में से एक ओरिजिनल कॉपी और एक डुप्लीकेट है, तो न्यू सेल वैसी की वैसी बन गई, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या था, 4 था, यहाँ पर भी 4 है और इसमें भी 4 और इसमें भी 4 है। नाउ वी टॉक अबाउट मेटाफेज 1, देन सेम 4 क्रोमोसोम है, वही सेल है लेकिन मियोसिस कर रही है। देन हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ
2 मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट कितनी बनेगी? 2, यानी कि 2 मेटाफेज प्लेट। तो ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है। देन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कंप्लीट क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर इंस्टेड ऑफ ए क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर पूरा पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर डॉटर सेल में जो नंबर है, यानी कि ये सेल थी 4, ये सेल भी है 4, यहाँ पर ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया ये 2, मीन्स n, ये सेल थी 2n, ये सेल थी 2n। ओके, नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू सेल। Then this cell will form other two new cell, this cell will form other 2 new cell, तो टोटल सेल्स हो जाएगी 4। अब देखो ये सेल आगे गई मेटाफेज 2 में। अब देखो यहाँ पर 2 ही क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पर मेटाफेज प्लेट में 2 ही क्रोमोसोम बनेंगे। मेटाफेज प्लेट में यहाँ पर कितने थे? 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं? 1 2, बिकॉज ये सेल में क्या है? रिड्यूस हो गया। अब देखो मेटाफेज में 1 मेटाफेज प्लेट बट क्रोमोसोम नंबर फुल। मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेज प्लेट एंड मेटाफेज 2 में 1 मेटाफेज प्लेट बट क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, वो पहले ही हाफ हो गया था। ओके, तो फिर ये अब यहाँ पर होगा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। यहाँ पर हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम का, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा? क्रोमेटिड्स का। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मेटाफेज एंड मियोसिस 2 बोथ आर सेम। फर्क किसका है? सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, बाकी ऑल प्रोसेस आर एग्जैक्टली सेम। इसके लिए सिर्फ क्रोमोसोम नंबर का है, बाकी सारा सेम है। तो देयर इज ए सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। अब देखो यहाँ पर 1 2 क्रोमोसोम 1 2 क्रोमोसोम, यानी कि ये सेल भी n है और ये सेल भी क्या है? n है। तो ये सेल भी क्या थी? हमारी n थी, और ये भी क्या थी? n थी। इसलिए तो ये हो गया मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टीलोफेज 1, मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टीलोफेज 2। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, तो ये था इसके बारे में सारा। सो हियर यू कैन इजीली गिव द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, यू हैव टू राइट मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। चाहे कितने ही डिफरेंस लिखो, डायग्राम बना के एक एक स्टेज का अलग अलग से, कैसे भी एग्जाम्पल के हिसाब से, कैसे भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू हैव टू राइट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, आफ्टर दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। In between I have told you what is the significance of mitosis, what is the significance of meiosis. Some lines are given in book, you have to read yourself and try to understand. Like if we talk about mitosis, तो mitosis का मेन काम है ग्रोथ का एंड रिपेयर का। if we talk about meiosis, तो meiosis का मेन काम है हैप्लॉन्टिक फेज लेके आने का, गैमेट्स हैप्लॉइड बनाने का, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन गैमेट्स को रीस्टोर कर सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing here in meiosis, that is variation. It introduce variation, do crossing over, recombination, and variation is essential for evolution. Okay, I have given you idea. Now you have to read from book only. So what are the differences between mitosis and meiosis? Then significance of mitosis and meiosis. Okay, here this chapter is over. Okay, you have to do exercise question. If you have any doubt, then tell me the question number, I'll solve. Okay, thank you.